ये होगा पहला बिंदु. Okay. Thereafter, this point can be, divided into several parts, like the branches of a tree. Okay. Means first leaf of this tree would be the roll number of a student, or maybe the name of a student, depending on the type of value that you are using. If I am using roll number as a key value, okay, then after each roll number, so roll number, then there would be several attributes like name, father name, mother name, date of birth, date of joining Vidyalaya, and name of class of joining in the Vidyalaya. Okay, then at present class, then what is the name of, then next would be the pass percentage, है ना, result. And then इसी तरह से एक तरह से we can say that there would be a set of atomic values in respect of करके computer science में since we are having 20 around 28 students, so there would be the 28 leaves of this route, है ना, जो लिखा है 12th कंप्यूटर साइंस, तो उसकी कई सारी ब्रांचेस बन जाएंगी. अब उन ब्रांचेस में ना जो लीव, सबसे आखिरी में जो ब्रांच होगी, सबसे आखिरी में जो लास्ट होगी, उसे हम बोलते हैं लीव नोड. क्या बोलते हैं? लीव नोड. लीव नोड क्या होती है? सबसे आखिरी में, जिसको आगे हम फर्दर जो है एक्सटेंड ना कर पाए, उसे कहते हैं लीफ नोड या फिर कॉन्क्रीट नोड. अब बात सुनो बच्चों, एक नोड जिसका कि कोई फर्दर चाइल्ड ना बने, वो अपने आप में ही वो कॉन्क्रीट, उसे हम कहते हैं लीफ नोड या कॉन्क्रीट नोड, है ना. तो अगर ये बन गया ट्री स्ट्रक्चर. अगर क्या करें हम, लीफ नोड जो होती है, अगर लीफ नोड को आपस में एडजॉइन कर दें, ठीक है ना, लास्ट वाली जो हमारी ब्रांचेस बन रही है एक ट्री की, और अगर हम लास्ट वाली ब्रांचेस को जोड़ दें बच्चों, जब हम लास्ट वाली ब्रांच को जोड़ देंगे तो फिर बन जाएगा, वो ट्री नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो फिर बन जाएगा एक लूप्ड ट्री. और उस लूप ट्री को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं लूप ट्री को? अगर ट्री को आप नीचे पीछे से जो उसकी लीफ नोड्स उनको जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, बताइए. Students, please, anybody who tell me if we are adjoining leaves of that, you can, I just wanted to say the concrete or most significant leaf of the tree. अगर मैं सबसे सिग्निफिकेंट ट्री की लीव्स को अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो कौन सा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा? बाइनरी ट्री. गुड. यू कांट से बाइनरी. अभी हम बाइनरी ट्री नहीं कह सकते उसको. अभी हम सिर्फ एक, जो उसको बाइनरी ट्री नहीं बोलेंगे, वो बन जाएगा एक तरह से ग्राफ. बाइनरी ट्री तो अलग चीज है कि बाइनरी ट्री जो होता है एक ऐसा ट्री होता है जिसकी की दो ब्रांचेज ही हो, है ना. मैं बोर्ड पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है ना. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ ऑन द बोर्ड. प्लीज लुक द बोर्ड. Everybody requested to please do sign, give your attendance. So just I'm trying to show you the same in the board. So on the board you can see
I think this board is visible to all of you. दिख रहा है बोर्ड आप लोगों को बच्चों? Yes, sir. Okay. So I am talking about tree. Since suppose I just wanted to derive a database for in respect of the students of computer science. So here I have to write 12 CS. Okay. So this is said to be the first or a root node. First node of the tree. It is called root node. It is called root. Okay. Then I am deriving some branches like this. So many branches I have derived. Okay. How many students are there? There are 28 students. So I have to derive how many branches required to be derived? 28. 28. Right. Then each branch may contain various sub branches because name, father name, mother name, date of birth, class not date of birth, then blood group, like that. So each can contain, but every node should contain the similar kind of branches. So this tree, that is a tree. Similarly, आगे मान लीजिए और भी हो जाए ऐसा करके नेम है, अब नेम के अंदर भी ना सरनेम और ऐसा आ जाए मिडिल नेम एंड फर्स्ट नेम, ठीक है ना, या फिर ऐसा आ जाए एड्रेस है तो एड्रेस के अंदर आ जाए हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, देन वार्ड नंबर, देन ब्लॉक, ठीक है, कॉलोनी, देन ब्लॉक, देन पिन कोड. तो ऐसे जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं बच्चों, अगेन यू कैन डिवाइड दैट particular attribute into multiple parts. So here I just wanted to tell you that is a tree structure. Okay, पर ये बाइनरी ट्री नहीं है, अभी ये सिंपल ट्री है. पर अगर मान लीजिए हम आगे जाके इसको ऐसे जोड़ दें, आप लोगों को दिख रहा है मैंने ज्वाइन किया है इसको, अगर ऐसे करके ज्वाइन हो जाइए तब ये ट्री नहीं रहेगा. इवन केवल एक ही नोड, जो लास्ट वाली नोड होती है इनको बोलते हैं हम लोग लीफ नोड्स. क्या बोलते हैं? लीफ नोड्स. जो लास्ट वाली जो नोड्स है ना, जो आपस में ज्वाइन नहीं है, इनको बोलते हैं लीफ नोड्स. यहाँ पर हमें एटॉमिक वैल्यूज ही मिलती हैं, ठीक है. अब सुनिए, अगर ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, एक्सीडेंटली ज्वाइन हो जाए, तब ये ट्री नहीं रहेगा, इसकी जगह फिर इसको बोलेंगे हम, भले ही अब ये क्लोज नहीं है पूरा, फिर भी ये कहलाएगा फिर ये ग्राफ. फिर ये ट्री नाउ के क्या बन जाएगा? ग्राफ. दैट इज द डिफरेंस. अगर ट्री में कहीं पर भी अब ये ट्री नहीं है, लेकिन अब ये ग्राफ नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, ऐसे करके पक्का ज्वाइन कर दिया, तो ये ग्राफ बन जाएगा. तो ट्री और ग्राफ में समझ में आ गया होगा अंतर. ये लूप्ड ट्री हो गया, अगर लूप ट्री कहीं पर भी ट्री में लूप हो गया तो वो ग्राफ बन जाता है, राइट. तो अब ये ग्राफ है, अब ये ट्री नहीं है, लेकिन इसको हटा देंगे तब ये ट्री रह जाएगा. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब बात सुनिए, अगर इसमें सिर्फ दो ही रिकॉर्ड होते, कैसे? जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है if there are only 2 records in respect of each node, जैसे ऐसा हो जाता है. हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा उसका एक टाइप है, डिस्कशन है, तो हमें पता होना चाहिए. एक रूट नोड है, फिर इसकी सब नोड सपोज करिए इसके चाइल्ड है 2 बी एंड सी, ठीक है. बी का एंसेस्टर ए है, सी का एंसेस्टर ए है, और ए एंड बी एंड सी बोथ द सक्सेसर ऑफ ए. अब क्या किया आपने? फर्दर अगेन बी को डिवाइड किया आपने डी और ई में. दिख रहा है सबको? फिर एफ और जी में. आपको दिख रहा है बच्चों? सबको दिख रहा है? यस सर. तो ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये बाइनरी ट्री है. क्यों बाइनरी है? क्योंकि इसकी देखिए आप जितनी नंबर ऑफ रूट्स होंगी, एक रूट के 2 चाइल्ड होंगे, फिर नेक्स्ट जो चाइल्ड होगा उसके भी 2 ही होंगे. 2 चाइल्ड हो सकते हैं, या फिर एक चाइल्ड हो सकता है, या फिर 0 चाइल्ड हो सकते हैं. अभी भी ये बाइनरी ट्री है, पर ठीक है. पर पहले वाले में उस वाले में डिफरेंस क्या है? पहले वाले जो बाइनरी ट्री है ना, उसमें और इसमें ये अंतर है कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाता है. अभी कंप्लीट है, मतलब उसमें 2 की आप जब आप देखेंगे तो जितनी भी सब नोट्स होंगी, रूट की 2 नोट्स और फिर सब रूट्स की भी 2 नोट्स, और ये लीफ नोट कहलाती है. जितनी भी आप लास्ट वाली नोट्स होती हैं इनको बोलते हैं लीफ नोट्स, ठीक है. ये लीव्स कहलाती हैं. अब देखिए
अगर ये 0 होता या यहाँ होता ही नहीं, 0 ही रहता और यहाँ 2 होते, तब भी ये बाइनरी ट्री ही होता। लेकिन ये बाइनरी ट्री कब नहीं होता? या तो उसकी चाइल्ड 2 0 हो सकते हैं, या 1 हो सकता है, या फिर 2 होंगी। अगर 2 है तो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अगर मान लीजिए किसी के 3 हो जाते हैं, सपोज करिए इसके 3 चाइल्ड हो जाते हैं इस तरह से, इट हैज 3 चिल्ड्रन, तब क्या होगा? तब फिर ये बाइनरी ट्री नहीं होगा। अभी एकदम से पूछा था, किसी बच्चे ने बोला था बाइनरी ट्री, तो मुझे ये समझाना था। तो सिर्फ अभी आपको बाइनरी ट्री वगैरह अभी कुछ भी नहीं है सिलेबस में, ठीक है? सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट है बाइनरी ट्री जो मैंने आपको यहाँ बताया है ना, ये सब आप जब बीटेक करेंगे तब आपको आपका टीचर वहाँ बताएंगे, तो आपको एक रिकॉल हो जाएगा उस समय कि हाँ कुशवाहा सर ने भी बताया था ये। तो बस इसको रख लीजिए एक तरह से ध्यान में कि बाइनरी ट्री भी कुछ एक होता है जो भी डेटा स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका बहुत बड़ा यूज है। न्यूरल नेटवर्क में इसका बहुत यूज है ना। वहाँ पर 2 एल्गोरिथम्स होती हैं कि कैसे कोई जो परसेप्शंस बनते हैं, या जो जब कोई चीज रिकॉग्नाइज करता है, पैटर्न मैचिंग होती है, तो पैटर्न मैचिंग में कितने ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर n-1 ऑप्शंस आर देयर, जहाँ पर n जो है वो उसके लेवल है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये जो इस 1 2 3 लेवल का अगर ये ग्राफ है, अगर ये बाइनरी ट्री होगा 2 की पावर 3-1, 2 की पावर 3 का कितना मतलब होता है 8, यानी कि 7 नोड यहाँ होने चाहिए अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अगर 7 नहीं है तो एबनॉर्मलिटी है। डॉक्टर नहीं कहते कि ये चाइल्ड एबनॉर्मल है, ये चाइल्ड नॉर्मल है। तो वो समझिए आप, यही कंप्यूटर में जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है बाइनरी ट्री पर बेस्ड होता है। बाइनरी ट्री का भी बहुत अच्छे आगे उसके कहना चाहिए उसके और ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट है, एडवांस फीचर्स भी है, उसके बी ट्री भी होता है। तो ये अभी ये ट्री जो देखिए इसमें एबनॉर्मलिटी है, क्योंकि ये बाइनरी ट्री इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 3 एलिमेंट हो रहे हैं। अगर आप इसको हटा दीजिए बीच में से, तो कितनी नोट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तब ये कहलाएगा सही, क्योंकि इसके कितने लेवल है? 1 2 3, तो 2 की पावर 3-1, तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 2:3, 8-1 यानी कि 7। अगर इसी तरह से अगर ये 1 2 3 अगर 4 लेवल का आप कर दो इसको, तो कितनी नोट हो जाएंगी 4 लेवल में? आप काउंट कर सकते हैं। 2 की पावर 4-1 कर दीजिए, कितनी हुई? 15। काउंट करिए 15 हो रही कि नहीं हो रही है सर? एक, हाँ सर यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ की पावर, यहाँ पर जो n है, वो है नंबर ऑफ लेवल। कितने लेवल तक आपका ट्री है? ये फर्स्ट लेवल कहलाता है, ये दूसरा लेवल कहलाता है, ये तीसरा लेवल कहलाता है। यस सर, लेवल ठीक है ना। तो अभी जो लेवल था फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, अगर हम सेकंड लेवल पे चेक करना है तो 2 की पावर 2-1, तो आप देखेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेंगी आपको? 3 मिलेंगी। अगर थर्ड लेवल पे चेक करा 2 की पावर 3-1, तो आपको कितनी मिली? 7। फोर्थ लेवल पे चेक करना है, फोर्थ लेवल हो गया। कौन सा लेवल हो गया? ये n मतलब लेवल, 4। कौन से लेवल पे हो आप? यस। जो घर में मंजिल नहीं बनती पहली, ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर है ना। ग्राउंड फ्लोर 2 की पावर, देखिए समझिए इसको, 2 की पावर n-1, 2 की पावर 1-1 ग्राउंड फ्लोर, तो कितना होगा ग्राउंड? कितनी नोड होगी ग्राउंड फ्लोर में? 1 नोड होगी। 2 की पावर 1 2, 2-1 यानी कि 1, तो ग्राउंड फ्लोर पे कितनी नोड होगी? 1 होगी, ठीक है। हालांकि ये मुझे मैंने बता दिया कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आज की जो जनरेशन है या आज का जो एडवांस प्रोग्रामिंग जितनी भी हो रही है उसमें बाइनरी ट्री का बहुत बड़ा यूज है ना। जितनी डेटा एनालिटिक्स में भी, बिग डेटा में भी बाइनरी ट्री का यूज है। जो फ्लिपकार्ट अमेजन के अंदर आप ऑर्डर करते हो ना, ऑर्डर करते में जो आपको सेमाफोर मिलता है, सेमाफोर बता रहा हूँ मैं, जब भी हम किसी भी जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से या हम सिस्टम पे क्लाउड पे, तो एक साथ 50-60 हजार रिक्वेस्ट आती हैं। तो उनमें से पर्टिकुलर इस एक जो आपकी जो रिक्वेस्ट होगी उसको एक सर्टेन टाइम मिलेगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, टाइम देने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो भी बाइनरी सर्च के या जो बाइनरी ट्री है उसके आधार पर उसकी एल्गोरिथम लिखी जाती है। समझ में? तो ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है बाइनरी सर्च ट्री के आधार पे। और भी बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती है। मुझे सिर्फ क्योंकि आपने बात की थी बाइनरी ट्री की, तो आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर कि बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें नंबर ऑफ नोड जो होती हैं वो 2 की पावर n-1 होती है, उसे ही कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलते हैं। और यहाँ पर जो n है वो लेवल है, डेप्थ ऑफ द ट्री है, ठीक है।
शुड आई प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर? अगर ये कहीं पर ये ज्वाइन हो गई, लास्ट की नोट जो ज्वाइन हो गई, तब ये ट्री नहीं रहेगा, तब ये क्या बन जाएगा? कहीं पर भी कोई नोट ऐसे आपस में ज्वाइन हो गई तो ये क्या बन जाएगा आखिरी में, मतलब इसे कहते हैं लूप हो जाएगा, तब ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा ट्री और ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट? ठीक, तो वापस आ रहा हूं मैं प्रेजेंटेशन पर। हमने ये पढ़ा अभी तक कि जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो इतने तरह का होता है, और स्टैक और क्यू को हमने इंप्लीमेंट करके देखा था। तो जो हमने स्टैक और क्यू को इंप्लीमेंट करके, स्क्रीन कुछ दिख रहा है आप लोगों को? मैंने स्क्रीन शेयर करी है एक, Yes, sir. डेटा स्ट्रक्चर 2 लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, चलिए। तो डेटा स्ट्रक्चर 2 जो है ना, ये अभी हमने जो पढ़ा है, अभी तक जो हमने पढ़ा है, उसमें आपको कोई डाउट किसी को? स्टैक क्रिएट करना और क्यू को क्रिएट करना, डी क्यू के द्वारा क्रिएट करना, लिस्ट के द्वारा क्रिएट करना, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने शेयर करे थे आप लोगों को, शायद आप लोगों ने व्हाट्सएप पे चला के देखे भी होंगे, उनको डायरेक्टली मैंने लिंक भेजी थी आपको जीडीबी ऑनलाइन की, देखे थे आप लोगों ने? बताइए बच्चों, have you gone through the programs which I have already sent to you through WhatsApp? How to create stack using list, and how to perform insertion operation, search operation, delete operation in stack, how to do these operations, how to perform these operation in queue, stack और queue में क्या difference है, बताइए चलिए जल्दी से, stack और queue में क्या difference है? फाल्गुन, Falgun. Aryan is there? Aryan? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Aryan बताओ, बताओ आर्यन क्या डिफरेंस है? सर पढ़ा नहीं सर ये वाला। पढ़ा नहीं है, स्टैक और क्यू पढ़ा नहीं है, ठीक है। और दिव्यांश आप बताओ, स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस है? दिव्यांश, दिव्यांश respond, दिव्यांश try, please respond. सर स्टैक लीफो मेथड को यूज करता है और क्यू फीफो मेथड को। ठीक है, और क्या डिफरेंस है? हाँ, यस सर स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंसर्शन और डेटा डिलीशन सिर्फ एक ही एंड पे होता है। वेरी नाइस, ठीक है। और दूसरा ये जो अभी बताया वो भी सही है, लीफो लिस्ट होता है, जो भी डिलीशन जिसका करना है आपको, जो रिसेंटली एडेड होगा उसी का डिलीशन पहले होगा। और एक अब आप ये बताइए, चलिए स्टैक तो आप क्यू में, और क्यू में क्या होता है? सर क्यू उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। कैसे मतलब स्टैक में जैसे कि सेम एंड पे होता है, उसमें डिफरेंट होता है। मतलब क्यू जो होता है वो डबल एंडेड होता है, स्टैक Yes, सिंगल sir. एंडेड होता है। आप ये कहना चाह रहे हो ना? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्यू जो है, क्यू इज अ डबल एंडेड लिस्ट एंड स्टैक इज अ सिंगल एंडेड लिस्ट। और अभी जैसे आर्यन ने बताया, दिव्यांश ने बताया कि जो स्टैक होता है वो एक लिफो लिस्ट होता है, मतलब जो एलिमेंट रिसेंटली एडेड होगा दैट विल बी डिलीटेड फर्स्ट, है ना, या फिर भी कहते हैं इसको, फर्स्ट इन, पहले आ जाओ आखिरी में निकलो। तो एक इस तरह का भी हुआ, सर वो मैंने बताया और था। क्या डिफरेंस होता है? हाँ गुड यार, आप सॉरी हर्षित तुमने बताया था ना, हाँ हार्दिक तुमने बताया था, गुड। Yes. तो और तीसरा जो है वो बताया था कि सर, तीसरा क्या बताया था कि जो थर्ड क्या बोला था तब, किसी दिव्यांश ने बताया था थर्ड, तीसरा कुछ क्या बताया था स्ट्राइक में? उसमें भी सही बताया था। मुझे अब जस्ट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द आंसर दैट he had quoted.
तो मेरा ये बस ये क्लियर करिएगा कि स्टैक और क्यू में जो डिफरेंस है, तो स्टैक जो होता है वो दोनों ही, देखिए एक और बात क्लियर करें कि अभी किसी ने बोला इसकी लीनियर, दोनों ही लीनियर होते हैं, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज कि स्टैक और क्यू में बोथ द जो स्टैक एंड क्यू होते हैं बोथ आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, इनमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और स्टैक जो होता है वो एक सिंगल एंडेड लिस्ट होती है, लीनियर सिंगल एंडेड लिस्ट होती है, और जो क्यू होता है वो डबल एंडेड होती है। इसमें जो डबल दो एंड होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। जो स्टैक होता है उसकी लिस्ट का जो एक ही एंड होता है उसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक, उसका नाम टॉप हम रखे हैं। और हम जब भी डिलीट करना है हमें आइटम को तो टॉप से ही होगा, और इंसर्ट करना है तो भी टॉप पर ही ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब सुनिए, लिस्ट में मुझे बताइए आप में से कि कौन बताता है कि लिस्ट में अगर मुझे सबसे टॉप से किसी एलिमेंट को ऐड करना है टॉप पर, तो कौन सी कमांड यूज करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? insert, No, 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 no. Insert function is used to insert an element at the user specified index. ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बोला वेरी गुड, पर थोड़ा सा ये करेक्ट करेंगे। इंसर्ट फंक्शन को कभी भी हम एंड में इंसर्ट करने के लिए यूज नहीं करते। बाय डिफॉल्ट एंड पर कौन इंसर्ट करता है? बाय डिफॉल्ट Append. इंसर्ट हो गया अपेंड फंक्शन। जो अपेंड होता है, अगर आपने फाइल हैंडलिंग में ही पढ़ा था अपेंड का यूज, वहां पर मोड था अपेंड, यहाँ पर फंक्शन है। आप लिखेंगे L1 डॉट अपेंड इफ यू आर हैविंग लिस्ट L1 इक्वल्स टू अरुण एंड पंकज, और फिर आप लिख रहे हैं L1 डॉट अपेंड और ब्रैकेट में लिख रहे हैं दिनेश, तो दिनेश विल बी द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। गॉट इट? that would be stored, it would be get inserted at the second index। 0 पे हो गया पहला एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स पे दूसरा, और तीसरे पे जो भी अपना दिनेश इंसर्ट करा है वो हो जाएगा। तो ये होगा अपेंड। इसी तरह से अगर आपको लास्ट से ही एलिमेंट डिलीट भी करना है तो कौन सा कमांड है, कौन सा फंक्शन है बताइए लिस्ट का? pop, पॉप ना। पॉप फंक्शन में अगर आप कोई भी इंडेक्स पास ना करें, खाली छोड़ के पास करें, जैसे अभी आपने अपेंड लिखा है, अपेंड में तो आपने लिखा आइटम का नाम और पॉप को खाली छोड़ दीजिए। आपने मैंने लिखा है L डॉट L1, या मेरी लिस्ट का नाम अगर L है तो L डॉट पॉप केवल, और ब्रैकेट L डॉट पॉप, और पॉप के बाद 2 ब्रैकेट लगा दिए। तो इससे क्या होगा, इससे जो भी आपने आइटम रिसेंटली ऐड किया है, जो भी लास्ट आइटम ऑफ द लिस्ट होगा, दैट विल गेट डिलीटेड। ये क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया ये? तो हम 2 ही ऑपरेशन यूज करते हैं, एक होता है अपेंड और एक होता है पॉप, ठीक है ना। इन दोनों से हमारा स्टैक इंप्लीमेंट हो जाता है लिस्ट में, राइट बच्चों? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद सुनिए, अगर क्यू करना है तो क्यू की कॉन्सेप्ट अलग है। क्यू ये कहती है कि इट हैज 2 एंड्स, वन इज फ्रंट एंड अनदर इज रियर। अगर आप देखिए जो जितने भी कंप्यूटर होते हैं, जो लैपटॉप अभी काम कर रहा है और आप लोग जुड़ भी रहे हैं, उन्नति इज हैविंग प्रॉब्लम, या कोई दूसरे बच्चे प्रॉब्लम में नहीं जोड़ पा रहे हैं, उनका मैसेज आ रहा है, रीजन उसका ये होता है कि दे आर इन क्यू। ऑलरेडी इतनी फ्रिक्वेंसी नहीं मिल पा रही होगी जिटसी से, तो बहुत सारी मीटिंग चल रही होंगी जिटसी के, तो उतना स्पेक्ट्रम नहीं मिल पा रहा होगा, उतना बैंड नहीं मिल पा रही होगी। तो इसलिए जो बच्चे पहले जुड़ गए वो जुड़ गए, बाकी बच्चे अब क्यू में है ना। ऐसा क्या हुआ, ऐसा भी आज कल एक मेरा वेबिनार था, है ना, सेंट लुसियाना, तो उस यूनिवर्सिटी का, तो उस वेबिनार में क्या था, मैं 200 लोग जुड़ गए पहले, बाद में जुड़ ही नहीं पाया मैं, क्योंकि जो लोग पहले जुड़ गए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब पहले आइए, आपको पहले आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू जो होती है, क्यू एक तरह से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट होती है, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लिस्ट होती है, इसको फीफो बोलते हैं, याद रखिएगा। क्यू इज FIFO, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जहां पर क्यू जो होता है, क्यू में जो एलिमेंट होता है उसको सर्विस मिलती है या प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं फ्रंट ऑफ द क्यू, और जहां से डिलीशन भी होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल ही समझे हम, अगर मुझे अपनी कोई फीस जमा करनी है स्कूल में, है ना, और मैनुअल जमा करनी है, तो क्या करते हैं, काउंटर स्कूल में खुल जाता है, उस काउंटर पे हम अपनी एक जगह पे होगा, एक विंडो होगी, उस विंडो पे जाके अपनी फीस जमा करेंगे। तो अगर मान लीजिए ऑलरेडी 10 पीपल वहां पर लगे हुए हैं क्यू में, और आपको भी जमा करनी है, तो आप कहाँ पर लगेंगे? मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या आप
फ्रंट पे लगेंगे या आप बैक में लगेंगे? और उस ट्री में आप क्रॉस नहीं कर सकते किसी आइटम को, एक बार में एक एलिमेंट ही हो गया, बस एक व्यक्ति ही घुस सकता है उसमें, बीच में सरी वो लगे हुए हैं, बैरिकेड्स हैं। तो आप क्यू में किस जगह पर सर्विस अवेल करने के लिए खड़े होंगे? क्या फ्रंट पे खड़े होंगे या बैक में खड़े होंगे? बताइए। पीछे खड़े होंगे, रियर में। यस, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सर फ्रंट में। My question is clear or not? You have to submit, you have to deposit a bill of electricity. Yeah, you have to deposit some. You wanted to purchase a ticket of the cricket match being organized at Bhopal Stadium. Okay, and tickets are distributed through the manual ticket window. या आप लोग आशा मॉल या आइनॉक्स गए होंगे, वहां पर भी टिकट खरीदते होंगे। तो ऑलरेडी 5 लोग लगे हुए लाइन में, ठीक है। आप ये बताइए कि आपकी पोजीशन क्या होगी जब आप रिक्वेस्ट लेके जाएंगे? 6वें नंबर पे होंगे या 0 नंबर पे होंगे? सर रियर। रियर पे होंगे ना? बैक है सर। हाँ, और जो सर जिसको टिकट पहले मिलेगा, टिकट किसको मिलेगा पहले? जो फ्रंट में होगा, है ना। तो जो आगे होगा वो टिकट लेके पहले डिलीट, मतलब जो रिमूवल होगा वो हमेशा फ्रंट से होगा, और जो इंसर्शन होगा वो हमेशा कहां पर होगा? इंसर्शन कहां पर होगा क्यू में? जैसा अभी बोला था। यस, रियर। रियर पे होगा। गुड। थोड़ा सा जल्दी बोला करो ताकि क्लास थोड़ी सी ऐसा लगे इंटरेक्टिव है। हमारी क्लास थोड़ा सा बड़ी ऐसी लगती है जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन ही रहे हैं, है ना। थोड़ा सा हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में थोड़ा अटेंटिवनेस अपनी जो शो करें। फाल्गुन, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टिल राइट नाउ। फाल्गुन, आर यू हियर? आर यू एबल टू लिसन? यस सर। ओके, सो क्लियर, समझ में आ रहा है कि क्यू और स्टैक हम बता रहे हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी करा था हमने। तो क्यू को जो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो हम क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लिस्ट यूज कर रहे हैं अभी हम। और लिस्ट में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे 2 फंक्शन यूज करेंगे, वही हम जो फंक्शन अभी स्टैक में यूज करें। एक तो अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन से क्या होगा कि इंसर्शन शुड बी देयर एट द एंड ऑफ द क्यू, दैट इज कॉल्ड रियर ऑफ द क्यू, ठीक है। स्टैक पे भी एड में ही होता है, पर स्टैक और क्यू में जो अंतर है वो ये है मूलभूत कि स्टैक में डिलीशन भी उसी एंड से होता है, इसलिए आप पॉप लिख देते हो, पर क्यू में डिलीशन कहां से होता है? फर्स्ट एलिमेंट, है ना। जो तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, उसका इंडेक्स क्या होता है हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का? बताइए। लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है हमेशा? 0। तो फिर हम लिख देंगे एल डॉट पॉप और ब्रैकेट में 0। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका क्यू इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो हमने यही किया था प्रोग्राम में, जो आपको भेजा था ना प्रोग्राम, उसमें अपेंड किया, फिर हमने पॉप किया, पॉप 0, लिस्ट क्यू के केस में हमने 0 कर दिया। तो ये तो हुआ लिस्ट के थ्रू। इसके अलावा एक हमारे पास इनबिल्ट लाइब्रेरी भी है पाइथन में, जिसका नाम है DQ, और वो लाइब्रेरी हमें मिलती है कलेक्शन लाइब्रेरी से, है ना। मतलब एक तरह से यूं समझाऊं, लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी इज अ सेट ऑफ मॉड्यूल्स। बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया फैक्टोरियल निकालने का, हमने निकाल लिया प्रोग्राम फिबोनाची सीरीज का, फिर गॉसेस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा ना फिजिक्स में, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फिर आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का भी आपने एक बना लिया प्रोग्राम, और सब प्रोग्राम मिला के आपने उसको धनंजय नाम से या उन्नति नाम से अपने सेव कर दिया, unnati.py। सो दैट unnati.py या dhananjay.py जो भी आपने बनाया है, इट इज सेट टू बी ए लाइब्रेरी। अभी आपकी लाइब्रेरी बन गई। अब आपको इंपोर्ट करना है इसमें से, सपोज करिए इसमें से आपको सिर्फ गॉसेस थ्योरम वाले फंक्शन इंपोर्ट करने हैं। तो एक तरीका आप ये लिख सकते हैं, इंपोर्ट, सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ, तो आप वहां पर लिख सकते हैं, वहां पर आप ये लिख सकते हैं इंपोर्ट, और वहां पे आपकी लाइब्रेरी का नाम, ठीक है, उसका नाम है, सपोज करिए लाइब्रेरी है आपकी, बड़ी लाइब्रेरी है 12CS, इंपोर्ट 12CS, ठीक है। फिर उसकी छोटी लाइब्रेरी है डॉट, मुझे उसमें से फाल्गुन को करना है इंपोर्ट, डॉट फाल्गुन SF, इंपोर्ट 12CS डॉट फाल्गुन SF। एक तो तरीका ये है। आपको ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो आप क्या करिए, आप वहां पे फ्रॉम यूज कर सकते हैं।
तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 12 CS इंपोर्ट फाल्गुन, जो कि मैंने आपको करके दिखाया था, फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट DQ। लिखा था आपने, देखा था आपने प्रोग्राम, सबने भेजा हो तो मैंने व्हाट्सएप पे। बच्चों मेरे को प्रोग्राम्स भेजे, हैव यू सीन दोस प्रोग्राम्स? नो सर। नहीं देखे? ओ, ये तो बहुत गलत बात है। मैंने आपको अपनी आपकी क्लास और दूसरी क्लास के बीच में 1 घंटे का समय होता है, ठीक है ना? और मैं आपकी क्लास के लिए तैयार हो जाता हूँ 9 बजे, फिर 9 o'clock से लेके और मैं 1 बजे तक कोई भी मतलब पानी भी नहीं पीता हूँ। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आपको तक कुछ मैं भेजूँ, तो इसलिए मैंने प्रोग्राम बना के आपको भेजे थे, ठीक है? और फिर आप लोग नहीं करते हो ना, तो मुझे बड़ा हर्ट होता है। तो मैं अगेन उन प्रोग्राम सर देखा था, सर देखा था। गुड। तो एटलीस्ट आप उन प्रोग्राम्स को जो बनाते हैं, मैं आपको देखो, आपको स्क्रीन पे शेयर करी है, अभी दिख रही है व्हाट्सएप वाली स्क्रीन? इसमें यहाँ लिखा है इंसर्शन एंड डिलीशन इन क्यू, दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को बच्चों? I have shared screen. Insertion deletion in queue, ये मैंने आपको भेजा था। इससे पहले भेजा था आपको insertion deletion in stack, और ये दोनों ही प्रोग्राम लिस्ट बेस्ड थे, यहाँ मैंने DQ यूज नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम लिखा था आपको कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग DQ। हमने कलेक्शन लाइब्रेरी से, वहां पर कलेक्शन हमारी लाइब्रेरी है, उससे एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था जिसका नाम DQ है। तो हमने लिखा था फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट DQ। अगर किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप फिर वहां पर एक काम कर सकते हैं, आप फिर ऑब्जेक्ट के रूप में DQ को कॉल कर सकते हैं, जो वहां पर आप लिखेंगे इंपोर्ट कलेक्शन डॉट DQ एस डी। मतलब तरीके दो हैं, कई बुक्स में ऐसे लिखा है और कई बुक्स में फ्रॉम करके लिखा हुआ है, ठीक है? फिर DQ में क्या करना पड़ता है, DQ के अंदर आपको एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। वहां पर आप लिस्ट नहीं लेंगे, आप वहां पर एक वेरिएबल ले लीजिए और DQ नाम का फंक्शन है, उसको अंदर आप ब्रैकेट में लिस्ट के जैसे आप डिफाइन कर दीजिए। अब सुनिए, DQ और सिंपल लिस्ट में कोई अंतर नहीं है। अगर आप स्टैक अप्लाई कर रहे हैं तो देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, ठीक है? डिफरेंस कहां पर है? जब आप क्यू यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्यू में हम स्टैक जब सिंपल लिस्ट यूज करते हैं तो हम लिखते हैं पॉप 0, लिखते हैं ना पॉप 0, लेकिन यहां पर आप लिखेंगे पॉप लेफ्ट। क्या लिखेंगे यहां पर आप? पॉप लेफ्ट। तो पॉप लेफ्ट से क्या हो जाएगा, जब पॉप लेफ्ट से जो आइटम होगा लेफ्ट हैंड साइड से डिलीट होगा, और पॉप लेफ्ट जो होता है वो DQ में ही डिफाइन होता है, वो सिंपल लिस्ट के अंदर फंक्शन नहीं होता। मैंने करके भी दिखाया था लास्ट टाइम। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज गो थ्रू दीज प्रोग्राम्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। और देखिए, मैंने आपको कहा भी था कि इसे अत्यंत आवश्यक कार्य होने के कारण आज आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है, आपकी क्लास कल सुबह, इस तरह से मैंने संडे के लिए भी कहा था, सैटरडे क्लास नहीं हुई थी आपकी, है ना? और मैंने आपसे कहा था इन प्रोग्राम्स को बनाकर इनकी स्क्रीनशॉट शेयर करिए, कहा था, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बच्चों ने मुझे पर्सनली स्क्रीनशॉट शेयर करे, ठीक है? और अगर मैं यही कंपैरिजन आपको करूं, मैं आपको स्क्रीन शो करके बता सकता हूं कि IP के लगभग 90% बच्चे, 2 बच्चे ने नहीं कर पाए थे, सृजन और मयंक ने, ठीक है? और 22 बच्चों में से 20 बच्चों ने मुझे उस दिन आउटपुट स्क्रीन अपनी, वो लोग दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो लोग डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ रहे हैं, वो लोग डायग्राम वगैरह बनाना, ग्राफ वगैरह बनाना सीख रहे हैं। एंड एवरीबडी एक्सेप्ट दीज 2 पीपल, सृजन और मयंक के अलावा सब ने मुझे अपने स्क्रीनशॉट भेज दिए, ठीक है ना? तो यहाँ से थोड़ी इनकंसिस्टेंसी दिख रही है जो कि नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है बच्चों? थोड़ा सा आप लोग ऐसा, हम लोग इंटरेस्ट अगर नहीं लेंगे ना, तो फिर हम सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट लर्निंग नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा आपसे कि जो ऑनलाइन हमारी क्लास है उसका एक ही पर्पज, उसका पर्पज ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है ना? उसका केवल एक ही पर्पज है, टू ट्रांसफॉर्म जो लर्निंग है उसको एप्लीकेशन में ट्रांसफॉर्म करना है, टू ट्रांसफॉर्म लर्निंग इनटू एप्लीकेशन।
और जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करेंगे अपने एंड पे, जब तक आप खुद नहीं करेंगे, तब तक वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म आवर लर्निंग इनटू एप्लीकेशन। ठीक है ना? जब तक हम खुद ही अप्लाई नहीं करेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें आता है ना? जैसे अभी पावन आपने किए वो प्रोग्राम्स? नहीं सर। दिव्यांश आपने किए? आकाश आपने किए बच्चे? मतलब मुझे लग रहा है कि 80% बच्चों ने मुझे यहाँ करके नहीं दिए, तो प्रोग्राम्स के स्क्रीनशॉट भेजे थे। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दी प्रोग्राम, इवन आई हैव गिवन द कोड भी तो मैंने दे रखा है आपको। आप उस कोड को पहले समझिए क्या हो रहा है, और फिर उसको उसी प्रोग्राम को रन करके देखिए ना आपको हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर ओनली 10 minutes. I need your 10 minutes only. In 3 days, I wanted 10 minutes work on the PC, on the mobile, or on the laptop, or on the tab. GD भी ऑनलाइन है, अलग से परेशान होना आपको। तो अगेन आई अर्ज यू, अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज बी फोकस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल स्टडी, है ना? आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, क्योंकि थ्योरी तो देखिए सब पढ़ लेंगे, थ्योरी तो बुक में भी लिखी हुई है, प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। मैं तो कुछ ही बोलता रहूंगा, बताता रहूंगा, और मैं बना के समझाता भी रहूंगा, लेकिन जब तक आप स्वयं नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर प्रॉब्लम भी आएगी ना स्वयं बनाओगे तो, राइट? तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने लास्ट टाइम हमने ये जो है ना क्रिएट करना है, स्टैक्स को क्रिएट करना, और स्टैक्स क्या होते हैं, तो मैं जल्दी एक बार आपको फिर से बता देता हूँ जो लोग नहीं थे लास्ट टाइम में, फिर से, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक पे लगभग 2 वीक से हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, और रीजन उसका है कि आप लोग कंसिस्टेंट नहीं है ना? फाल्गुन, आप रेगुलर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? उन्नति की प्रॉब्लम, उन्नति है शेयर हर्ट प्रॉब्लम, है ना? कुछ प्रॉब्लम थी उसको, कहीं बाहर थी वो, और डेटा कलेक्ट कुछ ही प्रॉब्लम थी। फाल्गुन आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? फाल्गुन, ओवर टू फाल्गुन। यस, एनी प्रॉब्लम फाल्गुन? क्यों अटेंड क्लास क्यों नहीं कर पा रहे हैं रेगुलर आप? फाल्गुन? यस सर। Why you are not able to attend the class regularly? सर वो बीच में छुट्टी लगी थी, तो फिर मुझे लगा कि सीएस क्लास की भी छुट्टी है, तो फिर तब से नहीं आया था। नहीं, ऐसा लगना नहीं चाहिए ना बाकी बच्चे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आप देख रहे होंगे, ग्रुप तो देखते होंगे ना? यस सर। तो 12th वाले ग्रुप पे ही भेज देता हूँ, और व्हाट्सएप भी, तो उससे तो ये लग रहा है कि इंटेंशनली यू हैव नॉट अटेंडेड द क्लास। देखिए एक बात सबको क्लियर कर दूं कि ठीक है, कुछ चीजें आपको बहुत सरल लगती होंगी, है ना? कई बार क्या होता है, हम जब चीज़ समझ लेते हैं तो हमें इजी लगती है, लेकिन कई बार वो चीज़ जब हमारे पास कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा और हम उसको रट के करेंगे तो डेफिनेटली वो हमें कभी भी समझ में नहीं आएगी, है ना? वो उसका अच्छा परसेप्शन हम नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू, अगेन आई रीटरेट कि डू अटेंड द क्लास रेगुलरली। अभी भी आज भी हमारे पास 11 स्टूडेंट आर देयर ऑन द क्लास ओनली, और जबकि इससे पहले 2 वीक पहले तक 22 बच्चे यहाँ हुआ करते थे रूम में। तो अब व्हाट इज द रीजन आई डोंट नो। आज जहाँ चलो धनंजय बाहर है, अर्णव नहीं है आज, ठीक है, आर्यन यहाँ पर है, आर्यन रेगुलर है बच्चा। सर मिनाल भी नहीं है। हाँ, मिनाल भी नहीं है। तो देखिए कुछ फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि अब बाद में अगर आप लोग आएंगे ना प्रॉब्लम को लेके, आई विल नेवर एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन। तो थोड़ा सा अभी आप साथ चलिए, मैं प्रोजेक्ट देने वाला हूँ आप लोगों को, वो प्रोजेक्ट हम यहीं बनाएंगे, ठीक है? बाहर तो जा नहीं सकते आप लोग, तो प्रोजेक्ट जब तक आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे स्टैक के, क्यू के, डेटा स्ट्रक्चर के, तो आप कैसे बना सकते हो प्रोजेक्ट? नहीं बना सकते हो, ठीक है ना? और एक बात और क्लियर कर दूं, जब 12th क्लास की जो लर्निंग है उसमें जो पढ़ाई करने का तरीका है और बाकी जो एडवांस लर्निंग है, दोनों में डिफरेंस है।
आप पाइथन के ऑनलाइन ट्यूटर्स पढ़ेंगे तो वहाँ डिफरेंस है, वो इतना क्लैरिटी के साथ, इतने मतलब वो डिसेक्शन करके नहीं बताते ये चीज को। तो प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास, be regular while class is going on, and without taking permission don't leave the class. These are online class etiquettes, है ना। हम हालांकि बहुत अच्छी क्लास हमारी है ना, लेकिन कुछ थोड़ा रिस्पॉन्सिव, थोड़ा सा अटेंटिव रहिए क्लास के अंदर। जब कोई क्वेश्चन आपसे करता है टीचर, तो उसको तो फट से रिस्पॉन्स करिए। ये नहीं कि टीचर ही टीचर बोला जा रहा है ना। इट इज नॉट अ क्लास। मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि जब तक हम लर्निंग को एप्लीकेशन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेंगे, ये पूरा का पूरा हमारा सब पाखंड हो जाएगा, सब बेकार है। मैं यहाँ बैठा हूँ, डेटा को जला रहा हूँ, आपके पास सब लोग डेटा, सोचिए आप कितनी जीबी डेटा जल रहा होगा, कितनी जीबी डेटा खराब हो रहा बर्न हो रहा होगा, कितनी सारी कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट हो रहे होंगे, सोचिए, है ना। लेकिन अगर ये प्रोडक्टिव हो जाए तब तो ये बहुत अच्छा है, तब तो हमारा थ्रूपुट अच्छा मिल जाएगा। कहते हैं ना कि अगर आप 5 रुपए खर्च करके 20 रुपए का काम कर लो या 2,000 रुपए का काम कर लो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 5 रुपए का खर्च करके भी आपको क्या मिले, जीरो मिले, तो वो फिर थ्रूपुट नहीं कहलाएगा, वो फिर डिफिशियंसी कहलाएगी, है ना। तो डिफिशियंसी नहीं हमें बनना है, हमें डिफिशियंट नहीं, हमें डिप्रिशिएट नहीं करना है, हमें अप्रिशिएट करना है। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितने भी बाकी लोग भी हैं उनको भी कहो कि क्लास अटेंड किया करें, है ना। और फार्गुन प्लीज अटेंड द क्लास। हाँ चंद्रप्रकाश, देखो जो बच्चे रेगुलर में उनका नाम जरूर बताऊंगा। धनंजय अभी नहीं है लेकिन बहुत हमेशा रेगुलर है। अर्णव, लविश आज नहीं है लेकिन रेगुलर रहता है। चंद्र प्रकाश ऑलवेज रेगुलर रहता है। भानु ऑलवेज रेगुलर, सबसे पहले आने वाले बच्चों में से ही है भानु, चंद्र प्रकाश, है ना, हार्दिक, ये है ना, आयुषी, उन्नति अभी 2-3 बार से नहीं थी लेकिन उसको कुछ थैंक यू प्रॉब्लम सर। थी, है ना। तो उसके अलावा मतलब सौम्या, दिव्यांश, तो कुछ बच्चे जो है ये बहुत मतलब हमेशा रेगुलर रहते हैं। पर कृतिका है या फाल्गुन है ना, या आकाश है, तो हर्षित भी रेगुलर रहता है ना। तो बाकी ये बच्चे जो है इनसे रिक्वेस्ट है, ये बाकी जो अभी जैसे मिनाल है ना, वो भी कभी कभी आएगा। तो बाकी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि सलोनी इज ऑल्सो देयर, वो भी ऐसी ईद का चांद का अभी बताती है। एक बॉल होती है ना, क्रिकेट खेलते हैं आप देखा तो, देखते तो होंगे ना, कहीं वाइड बॉल की तरह है ये लोग, एक वैसी बॉल पड़े वाइड, कभी कभार वो गलती से टर्न होके स्टंप पे आ जाती है। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो अपनी, क्योंकि आप को 1 घंटा निकालना है सिर्फ, और उस 1 घंटे में हमें जो हमारी बात, मैं हालांकि मैं ज़्यादा खींच रहा हूँ, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपको, लेकिन मुझे जरूरी था कहना ये बीच में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जब तक हम अपनी बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को प्रोग्राम दिए तो वो बनाने हैं। आपको केमिस्ट्री क्लास है आप लोगों की? केमिस्ट्री क्लास है या नहीं है? यस है, कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया क्या? यस या मेरे पास है 4-5 मिनट? सर, एक्चुअली 11 बज चुके हैं। 11 बज चुके, ओके। सो लेट्स नाउ आई एम सो यू कैन लीव। मैं आपको विद द रिक्वेस्ट यू प्लीज गो थ्रू द program that I have already disseminated among you through the WhatsApp channel, and I have already shared some documents, some handouts on Stack and Q. So go through these handouts, and please be regular in the class. Our next class will be scheduled to be held on that next today is Tuesday, and then Thursday. Okay, so our next class is scheduled to be held on थर्सडे, ठीक है। तो अपनी टीटीएस पता है ना आपको, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे तो हमारी क्लास होगी, और उस दिन हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नोटेशंस। इसमें हम प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन स्टैक्स का क्रिएशन और क्यू का क्रिएशन ये आप लोग पढ़ लीजिए। जो डाउट्स हैं वो पहले आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल कर सकते हो। सो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। Thank you. वेलकम सर।
हेलो, हाँ क्या, क्यों अटेंड नहीं कर रहे हो क्लास? हाँ अच्छा, तो जब फ्री रहा करो तब कॉल कर लिया करो ना, जब फ्री हो जाया करो, जब भी फ्री हो जाया करो तो तब कॉल कर लिया करो एक बार कि सर ये वाला समझा दो, तो कोई दिक्कत नहीं, तो उस समय मैं समझा दिया करूंगा। अरे तो क्या जरूरी है उस क्लास के लिए? आप पूछ तो सकते हो, तुम प्रोग्राम बना के जब भी कॉल कर सकते हो मेरे को, तो वो पूछ लिया करो ना अलग से, क्या दिक्कत है? कौन सा छूट गया था? हाँ अभी नेक्स्ट क्लास होगी ना केमिस्ट्री की, एक काम करो केमिस्ट्री क्लास अटेंड कर लो, फिर ठीक है। हाँ तुम्हारा लॉस तो नहीं हो रहा, बस ये देख लेना। हाँ हाँ कोई मतलब नहीं है उसका, देखो फंक्शनल लाइब्रेरी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये एकदम डेटा स्ट्रक्चर एकदम अलग टॉपिक है, जैसे फाइल हैंडलिंग था ना, वैसे ये है डेटा स्ट्रक्चर, एकदम डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें करो, बुक की जरूरत ही नहीं है, मैं जो भेजा है वही कर लो ना यार, अभी तो वही करो, फिर बुक में जब तुम्हें क्वेरीज हो तो बुक पढ़ के देख लेना। तो कोई नहीं, बुक से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तुम अभी क्या करो, मैं टास्क दे रहा हूँ, कल अगर जब टाइम हो तब पूछ लेना। अभी तुम ना डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ो, लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन स्टैक बनाने के लिए और क्यू बनाने के लिए, ठीक है। और डी क्यू का कैसे यूज करते हैं स्टैक और क्यू बनाने के लिए, इतना अपने आप करके देखो, ठीक है।